Now I'm moving towards the next chapter, directing. Before we do directing, let me tell you, जैसे organizing में we have very limited concepts. उसमें हमारा क्या था? Organizing process, then the structures, then organization, यानी कि formal, informal, delegation and decentralization. In this, you would be having the features, significance. Then we have one very important concept, that is elements. And एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद ही ऐसा कोई रहा हो जिसमें ना आया हो, मैस्लोस हायरार्की थ्योरी, ये. Then barriers towards communication and how do we remove them. तो इस चैप्टर के अंदर आपका जो है थोड़ा सा अलग जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके उसमें आपके पास पूरा सामने के सामने है. ओके, वर्क हैज टू बी डिवाइडेड, डेलीगेशन है, डिसीजन हैज टू बी डिवाइडेड टू द लोएस्ट लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन. लेकिन यहाँ आपके पास और भी चीजें हैं. लाइक यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स है तो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है. therefore this chapter is bit, अभी तक मैंने देखा है कि when the students are doing this chapter they really feel कि अच्छा भी है, on the other hand it is also bit lengthy. So let us start today with the notes. Till now what we have done is, first we said every work has to be planned, and when the planning is brought into action, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज. यानी कि काम को बांट कर कौन उसको करेगा ये डिसाइड करना. लेकिन डायरेक्शन इज गिविंग सम काइंड ऑफ, यहाँ मैं कमांड वर्ड यूज नहीं कर सकती हूँ. आई कैन से सम काइंड ऑफ एक्शन कि क्या करना है, so that the work is done in the most effective and efficient manner. अब हमने ये तो कह दिया कि भाई दिस इज द वर्क, दिस वर्क हैज टू बी डिवाइडेड इन दिस. ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का हेड ये है. लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो काम होगा, हाउ दैट वुड बी डन. एंड वर्क when we say is to be done is never correct unless and until the work is done efficiently and effectively. यानी कि टाइम से भी कंप्लीट होता है एंड विद इन द मिनिमम रिसोर्स कंप्लीट होता है, तो हम कहते हैं कि द वर्क हैज बीन डन इन द राइट मैनर. So why do we need direction or directing? When you are watching any movie, any Netflix, any series, any web series or something, कुछ जो बन के आता है, मतलब मूवी हो या सीरीज हो, एनीथिंग, when it is complete, when it is present before you, you are very happy. And what do we say? Director कमाल का था. The director was stupendous. That means उसने जो एक्शन को इनिशिएट किया है, that has been done in the right manner, all the elements that had to be followed, इस डायरेक्शन को पूरा करने के लिए उसे जो जो चीजें यूज करनी थी, he has used everything. Like when we are watching about it, when we are talking about any movie or anything, songs हो गए, then sequence हो गया, cinematography हो गया, then dialogues हो गए, dialogue की delivery हो गई, everything matters. Similarly, in an organization also, when the direction has been given in the right manner, that would result in the effective and efficient work. Why? What are the features? First,
When you are directing, that means the action starts taking place. काम का actual शुरुआत हो जाता है. It is pervasive. Means, and there are so many levels of hierarchy. Top level say management, sorry, middle say lower, and it is there in between everyone. टॉप लेवल डायरेक्ट करता है मिडिल को, मिडिल डायरेक्ट करता है सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर्स डायरेक्ट करते हैं अपने नीचे के वर्कफोर्स को. अगेन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बट डायरेक्शन या डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ गिविंग द कमांड कि इस काम को आपको ऐसे करना है. So it would not be given by the subordinate to the supervisor. It is supervisor to subordinate. Why do we need it? Because the actual work will start only when we give the direction. When will we tell them what is the work? It will integrate the efforts of all the people, whether it is the departments or it is in the hierarchy, vertical हो या horizontal हो, सबके काम को जो है वो integrate करेगा. Now when we say direction, आगे हम पढ़ेंगे, direction का एक सबसे important element है to inspire people, to motivate them. Now direction मतलब क्या है? ऐसे नहीं, इस काम को आप ऐसे करो. No, what you have done is wrong. I'm not going to accept your work. Oh wow, you have done very nicely. I'm going to promote you. So you are somewhere giving the motivation. Sometimes the person isn't able to. Okay, what happened to you? Are you not well? ये छोटे छोटे जो words होते हैं, they give motivation to the employees. And of course, there are means of motivation जो हम अलग से पढ़ेंगे. When everyone knows what has to be done, how it has to be done, then there would be balance in the organization, and एक proper direction से any situational changes होती है, any environmental changes होती हैं, that can be easily adopted. अब ये जो मैंने आपको बोला था, this is the one which comes in your exam. जैसे आपने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था, वन ऑफ द कंसेप्ट, सिमिलरली इसके अंदर आपका आ सकता है वन ऑफ द एलिमेंट्स. वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. और ये जो एलिमेंट्स हैं, दिस यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. इस चैप्टर का मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है. Now what is the meaning of element? Now you see a man. अब उसकी क्या खासियत है? मतलब क्या मिलकर वो इंसान बना है? तो आप कहते हो कि मैम उसकी 2 टांगे हैं, 2 हाथ है, उसका मुंह है, उसकी नाक है, इसीलिए हम उसको इंसान बोल रहे हैं. तो similarly what is directing is when there is, मतलब डायरेक्शन का मतलब है what to be done. So what is to be done? The person is being supervised. जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको सुपरविजन मिल रहा है. The
लीडरशिप इज देयर। टीम का जो लीडर है वो अपने साथ अपने मेंबर्स को लेकर चल रहा है, whether it is supervisor or a leader, he or she is giving the motivation to his or her subordinates। और ये जो तीनों चीजें हैं, इसके लिए हमें चाहिए होता है अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर हम आपको कोई बात कहते हैं, आपने उस बात को पूरी तरीके से नहीं सुना, या मैंने उसे ठीक से नहीं कहा, इन बोथ द सिचुएशन कम्युनिकेशन इज पुअर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल कि मैंने आपको कहा टुमारो आई एम प्लानिंग। आपने अपने आप ही सोच लिया अरे टुमारो तो 15 अगस्त है, मैम सोच रही छुट्टी लेना। ओके, sometimes I'm speaking, there is some noise, there is some network glitch. You haven't understood that, lack of communication. Now I'm speaking to class 12, लेकिन मैंने अपना लेवल रखा हुआ कि मैं स्टैंड पॉट में बैठी हुई हूँ, खड़ी हुई हूँ, वहां मैं लेक्चरर से बात कर रही हूँ। So there is a, with to whom we are conversing, to whom we are communicating, वर्कर्स है। अब आप वर्कर्स को कोई टेक्निकल लैंग्वेज बोलोगे, उनको क्या समझ आएगा? उनको क्या समझ आएगा? They will understand the language which is easy for them to comprehend. So communication, yani ki when we say direction has taken place, that means the supervision is there, यानी कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हम उसको देख रहे हैं। The leadership is there, यानी कि जो टीम का लीडर है, he is taking him or herself, her members with her। There is a motivation to the people who are working under them, and all of them are given in the proper communication manner। Elements of direction जो है, it's a very important concept of this particular chapter। And from each of them there is one question, from each concept। सुपरविजन आपके जो है ओनली सुपरविजन का मीनिंग है। In supervision, you are having only the meaning of supervision, what is supervision. But when it comes to motivation, you would be having the Maslow's theory. In leadership, you have three kinds of leadership, and in communication, you have the barriers to communication and how to overcome। तो ये जो तीन है, ये तो आपके बहुत ज्यादा important है। Now when it comes to supervision, यानी कि ऊपर से नीचे देखना, it comprises of two words। supervision means to see the work from above। what is that? मतलब इसका मतलब क्या, बस काम को ऐसे करके देखना? no, it means when the actual work is done, then जो सुपरवाइजर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है how the work has to be carried, if there is any procedure or a method, it is instructed। they are guided। अब भाई वेस्टेज हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, in case they are feeling any problem, they are motivated, and when the work is being done, ऊपर से उसको ऑब्जर्व किया जाता कि whether whatever he has instructed or guided is are those instructions followed। second, motivation।
Now, what is motivation? Motivation is an internal feeling. अगर मुझे अंदर से फीलिंग होगा कि मैं किसी काम को करूं, तो डेफिनेटली वो काम बहुत अच्छा होगा. द वर्क मे बी एनीथिंग, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा. इफ यू से मैम ड्रॉ अ पिक्चर और मेरा मन नहीं है तो मैं ये करूँ. एंड इफ इट इज माई हॉबी, इट इज माई पैशन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा बनाऊंगी. दैट्स अ वेरी सिंपल fundamental principles which is applicable to all of us. जब हमारी तबीयत खराब होती है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को गोली से उड़ा दे. लगता है ना? इट इज when we are feeling irritated, उस वक्त में हमारा भी मन करता है कि घर के अंदर जो, अगर घर में कोई हैंड पंप है तो उसको उखाड़ के सब पर डाल. दिस इज बिकॉज वी आर फीलिंग लो. एंड इफ वी आर मोटिवेटेड, मम्मी ने तारीफ की है, आज पापा ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है कि बेटा मैं खुश हूँ, कितना अच्छा लगता है. Therefore, in a company, in an organization, ये मोटिवेशन को हमें अराइज करना पड़ता है. खुद से कोई भी अपने आप नहीं काम करता है. हमें उन्हें टाइम टू टाइम वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मत सोचना कि हमेशा आपको तारीफ मिलेगी, वाह वाह वाह. कभी कभी तो मिलेगा वाह वाह वाह. तो यू हैव टू गिव दैट मोटिवेशन कि भाई काम करोगे तो यू आर देयर, नहीं करोगे तो नहीं हो. And we use various techniques to give this motivation. That may be one with money, financial, and दूसरा non-financial. आपको अच्छा पे मिल रहा है, आपके पे के साथ मतलब जिस लेवल पर यू आर वर्किंग, you are given some incentives. Wow, you have completed target, you have completed your target 100%, so I'm going to give you a foreign trip. These are there in the corporate world. I'm not talking from my side. In all the companies, it is mandatory to give 81/3% bonus to the employees, specifically in the worker level. सुपरवाइजर तक हम बोनस देते हैं, उसके आगे हम इंसेंटिव्स देते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी, उन्होंने किस लेवल तक बोनस रखा हुआ है और किस लेवल तक किसके बाद वो इंसेंटिव्स देते हैं. अभी recently, I don't know, but there was one company which had shared its profit with its employees. Now ऐसा नहीं है कि उनको क्रोज मिले हैं तो उन्होंने एम्प्लॉइज को बांट दिया. One some particular portion they give in some of the companies. जो आपके टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, the CEOs, the CFOs, they are even given the co-partnership stock option as a financial incentive. Wow, your work is marvelous. 1% share आपके नाम. Then when the person retires, there are retirement benefits like gratuity, pension, all the companies which are registered, which are organized have these things. Plus extra benefits. किसी किसी कंपनी के अंदर मेडिकल बेनिफिट्स हैं, मोबाइल बेनिफिट्स हैं, न्यूज़पेपर के बेनिफिट्स हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशनल, मतलब कि उनको एजुकेशन के लिए मनी मिलता है, हाउसिंग फैसिलिटीज मिलती है, ड्राइवर रखने को मिलता है. तो देर आर फ्रिंज बेनिफिट्स. अब ये जो जितने हमने पढ़े हैं, पे एंड अलाउंसेस, इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, दीज आर ऑल वेयर the money goes directly into your account.
कंपनी से पैसा निकला और आपके पास आया, आपके अकाउंट में आया. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. क्लास 12 इसको आप लोग जो हो, जैसे आपने वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में किया था ना, वैसे गड़बड़ मत कर. when you are reading the question, see whether that मतलब कि उसमें जो लिखा हुआ है, is that benefit in money and is it going to cash into your account, तो वो financial incentive. And non financial incentives होते हैं where you are not given the money directly. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा दे दी गई है. भाई अभी आप जो हो, यू आर लुकिंग आफ्टर ओनली वन प्रोडक्ट, यू लुक आफ्टर टू प्रोडक्ट. ऑर्गेनाइजेशनल जो क्लाइमेट है, इट इज वेरी कंजीनियल. जो मतलब कि टॉप मैनेजर्स हैं या फिर टॉप लेवल है, that doesn't interfere into the day-to-day affairs of the company. They give better decentralization. The company has some policies जिसके अंदर आपका करियर एडवांसमेंट हो सकता है. यानी कि when you enter into the company, you find कि 5 साल बाद मेरा जो है करियर एडवांस होगा. I may reach in this position. I may be getting this much of salary. In some place, your job might be more enriched. पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जा रहा है आपको. देर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें एम्प्लॉयज को बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज व्हाट हैपेंस इज, वन इज कि डायरेक्टली बोला जाता है कि वी वांट टू इन्वॉल्व यू. और आजकल कुछ कंपनीज में एक नया स्टार्ट किया है, दे टेक द रिव्यू मीटिंग्स एंड उसके अंदर दे आस्क द एम्प्लॉयज, उनके उनके विचार पूछे जाते हैं, देयर ओपिनियंस आर टेकन. डेफिनेटली बेटा, किसी भी कंपनी में जब आपको खुद को इन्वॉल्व किया जाता है ना, दैट इज ऑलवेज व्हाट वी कॉल एज इंसेंटिव. एंड यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क, यू आर गिवन मोर फ्रीडम. ये सब कुछ में हमारा पैसा नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, बट वी फील अ प्रेस्टीज. In some of the companies like McDonald, in McDonald, then in KFCs, अगर आप गए हो, मुझे आपके स्कूल का नहीं पता है, आई नो अबाउट विद्या भारती स्कूल. वहां पर क्या है, एवरी मंथ बहुत सुंदर से उनके नोटिस बोर्ड के ऊपर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का नाम लिखा होता है, एक टीचर. एंड उस टीचर ने क्या किया है उस पर्टिकुलर मंथ, ये भी दिया जाता है. In a McDonald, McD, KFC, the same procedure is followed. वहां पर लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द मंथ. इन आवर स्कूल व्हाट वाज देयर कि एवरी 3 months रिव्यू होता था एंड वी यूज टू गेट सम गिफ्ट. These are the way we are motivated. Next is leadership. नाउ बेटा मोटिवेशन, सॉरी मोटिवेशन के अंदर अभी एक तो रहता है, मोटिवेशन में आपके जो है एक क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मतलब की इंसेंटिव. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेंटिव. दैट माइट बी अ 1 marker क्वेश्चन, और मे बी अगर 3 है तो ऑल्सो एक्सप्लेन 2 more, ऐसे करके आ सकते. जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है ये. और ये जैसा बना हुआ ना, कलरफुल नहीं, आई एम नॉट सेइंग कलरफुल, लेकिन जो ये जैसा बनाना आपको वैसा ही बनाना है. अभी तक का मैंने आपको शायद डायग्राम के अंदर एक बताया था स्केलर चेन, दूसरा आपको मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
and this is the third one. This is the third one. और जब आपको ये क्वेश्चन आएगा विच इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड अभी तक ये क्वेश्चन हैज नॉट कम इन नेवर इन एनी ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन आपका जो है 4 या 6 में आता है। इसमें दो तरीके से आ सकते हैं, एक आपको आइडेंटिफाई करके बाकी बताना, और एक आपका डायरेक्ट एक्सप्लेन मैस्लो थियोरी ऑफ, मतलब कि हिरार्कियल नीड्स। नाउ मैस्लो जो था, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, he is not a management person, he was a psychologist, and as per the psychology, दुनिया में जितने लोग हैं, each and every person has some or the other needs, और इन नीड्स को उसने डिवाइड किया है बेसिक, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Every person, irrespective of rich, poor, boy, girl, everybody has basic psychology, physiology need. सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको कपड़े पहनने हैं, और सबको एक घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। whether the person is a laborer or a rich celebrity, everybody has this basic physiology need. Second is, every person in the world wants safety. Safety from theft, safety from robbery, safety from being looted, कुछ भी. Then all of us want certain social needs. और वो social needs क्या है? वो social needs है when people are talking to you, people are accepting you, people want to befriend you. आप किसी जगह पे रहते हो, वहां पर लोग सोसाइटी में आपको बुलाते हैं, मतलब आपकी फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स। फोर्थ, everyone needs some esteem needs, dignity, कोई आपको नीचा ना दिखा, एंड ऑल्सो यू वांट कि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में आप उसे कर पाओ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, and this is applicable to each and everyone, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और हो, everyone wants all these needs. and इसी मैस्लो थियोरी ऑफ हिरार्कियल नीड्स को हम मैनेजमेंट में लेकर आते हैं कि जैसा एक इंसान ऑफिस के अंदर आता है, कंपनी में काम करने आता है, when he or she comes, so the first thing what a person need is job, salary, एक decent salary. अगर मुझे किसी कंपनी में एक decent salary मिल रही तो why should I shift from this company without any reason? तो पहला जो हम सबका नीड होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज जॉब, सैलरी. सेकेंड इज सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, यानी कि कंपनी की पॉलिसीज ऐसी हैं जहां पता लगा मैं सुबह उठी और मुझे बोला जा रहा भाई जाओ, देयर इज जॉब सिक्योरिटी. देयर इज अ पॉलिसी कि कब हम नौकरी छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, एंड व्हेन यू रिटायर व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू आर गिवन. आपको एक, जब हम नौकरी करते तो हमारे दिमाग में पहली बात पता है क्या आती है? 25 साल, मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ कि 25 साल से 55 years तक तो we enjoy, but when we retire what will happen?
विल वी बी गेटिंग समथिंग? हम सेफ्टी चाहते हैं. देर आर सो मेनी कंपनीज वेयर यू डोंट हैव द पेंशन स्कीम्स. देन कंपनी के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों है, वेयर द पीपल आर गिवन द इनिशिएटिव्स. देन कंपनी के जो पॉलिसीज है उसमें प्रमोशन, जॉब एनरिचमेंट आपके लिए है. कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है. And it also gives you the opportunity to explore your talents up when you are joining. You may be joining as a manager, senior manager, but when you retire or over the period of 10 years, आपको लगता है आपके जो what you want to do, what you want to exactly explore is given the opportunity. तो ये जो 5 हमारे मैस्लो की नीड्स थे, बेसिक्स, देन आपका सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ, इसको जो है पैरेलली हमने कंपनी के अंदर डाला है बाय टेलिंग इट एज जॉब, सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी, पेंशन, एटमॉस्फेयर, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. अगर ये सब चीजें होती हैं किसी कंपनी में, इफ ऑल दीज मोटिवेशंस आर देयर, then the workers, when the people, they work properly. The next is leadership. लीडरशिप से क्या क्वेश्चन आता है? लीडरशिप में आपका क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ लीडरशिप. नाउ देर आर, you might have seen different kinds of teachers in your school also. You might have seen in your school certain times the teachers are too authoritative. Sometimes they ask you, sometimes they say जाओ अपने आप ही कर. जैसे स्कूल में फंक्शन होता है, जब पढ़ा रही होती है टीचर, तो टीचर बिल्कुल कहते हैं कि जो मैं कहूंगी तुमने वही करना है. समटाइम्स द टीचर इज टॉकिंग टू यू, शी इज आस्किंग ओके तुम बताओ क्या करना है, क्या है, कैसे है. एंड समटाइम्स छोटा मोटा फंक्शन है, किसी एक बच्चे को बोलते तुम जाओ, तुम हमारी क्लास को तुम जो हो सारा का सारा जो है कोरियोग्राफी तुम्हें करवा. होता है सभी स्कूल्स में. सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो लीडर होता है, यानी कि जो पर्सन होता है जो अपने मेंबर्स, अपने टीम के साथ काम कर रहा है, उसको हमेशा एक चीज याद रखनी है जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में लर्न किया था, स्पिरिट डे कॉर्प्स. देयर इज नथिंग लाइक आई डू, देयर इज ऑलवेज वी. और ये जो काम है ना, वो ये नहीं बोल सकता तुम ये करो तुम वो करो. दिस he has to influence with his behavior. He has to bring the changes in others through his behavior and actions. He or she is a good leader when he or she is able to handle the conflicts. चक दे इंडिया का अगर आपने देखा हो, चक दे इंडिया के अंदर शाहरुख खान, the one who is their coach, their leader, he is not only a good player, लेकिन वो अपने बिहेवियर से उन सब लड़कियों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपने आपस के कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर दे हैव टू प्ले फॉर देयर कंट्री. दैट इज आपका लीडरशिप. नाउ व्हेन वी आर वर्किंग इन अ कंपनी, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क. सभी लोग एक चीज है, चाहे कोई सफेद झूठ बोलता हो, कोई चाहे कोई काला झूठ बोलता हो, सब पैसों के लिए काम करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, nobody wants कि दूसरा जो है उसको मिल रहा है पोजीशन. There is always this conflict कि I am better than others, and such conflicts are part of any job and we need to take out that. और वो हो सकता है अगर हमारा टीम लीडर बहुत अच्छा हो तो, अगर वो कहता है अच्छा लड़ा, इनको लड़वा तो चलो. Ultimately what will happen,
इन मतलब कि या तो वो नौकरी छोड़कर जाएगा, या फिर आप मतलब कि जो नीचे काम करे वो एक एक करके चले जाएंगे। दोनों में कंपनी का लॉस। एंड अ गुड डायरेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन देयर इज गुड लीडरशिप, when the team member is taking everyone together. In any organization, we have three styles of leadership, not kind, style. प्लीज एक एक जो ये वर्ड्स लिखे होते हैं ना, इन पर हमेशा फोकस करें। फर्स्ट, अथॉरिटेटिव, बॉस, मैंने जो कहा जस्ट डू इट। Top level management normally gives the instructions, command, and it is only that all others have to follow. कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी की स्ट्रेटजीज, कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे कैन नॉट बी डिविएटेड। उसमें जो बॉस कह रहा है वही हमें करना है। एंड व्हेन सच लीडरशिप इज अडॉप्टेड, उसको हम बोलते हैं बॉस ओरिएंटेड या अथॉरिटेटिव। सेकेंड इज, जहां हमारा मिडिल लेवल है, वहां पर टीम ओरिएंटेड, डेमोक्रेटिक, जहां बॉस इज टेकिंग the initiatives of all, regular meetings are there, बात करी जा रही है, everyone is participating, that's democratic. And last but not the least is laissez-faire. I repeat, laissez-faire, यानी कि फ्री rein, खुला छोड़ देना। Now there might be कंपनी में कोई ऐसा फंक्शन चल रहा, the workers want to organize some party, वो लोग जो है जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, देन लीव टू देम, गिव देम द मनी एंड टेल देम दैट दिस इज योर प्लेस और आप अपने आप ही करो। और आपको पता बच्चे, आप लोग जब 12th से निकलते हो ना, तो यही चीजें जो होती है ना, व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग, यही हम लोगों को हमेशा आइडेंटिफाई करती है। दीज आर एक्चुअली द स्किल्स। अभी मैं किसका पढ़ रही थी, मतलब अबाउट मैनेजमेंट का पढ़ रही थी, कि जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को मैनेजमेंट में वी टीच देम व्हाट इज फ्रीडम, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेटिव, लेकिन आप रोड में देखो लोगों को, लाइक ये बॉम्बे का था, मतलब दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ मुंबई, कि जब मुंबई में ये दही हांडी और फिर ये जो गणेश उत्सव वगैरह होता है, तो जो आई एम टॉकिंग अबाउट द चॉल्स, सम एरिया, वहां पे लोग अपने आप ही ऑर्गेनाइज करते हैं। दे नो हाउ टू गेट द मनी, दे नो हाउ टू मतलब कि ऑर्गेनाइज इट, हाउ टू डेकोरेट इट, दे डू एवरीथिंग। और हम क्या करते हैं, वी रीड इट, एंड दैट इज वेयर द स्किल्स कम। तो ये जो अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रीम्स हैं, दीज आर नॉट ओनली द लीडरशिप स्टाइल्स, दे आर आल्सो द स्किल्स। एंड इन एनी कंपनी, no boss is completely authoritative, he cannot be, एंड नो बॉस कैन बी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। आओ भाई, सबको हम लोग आपको ऑफिस के सीक्रेट बताते हैं। एंड नो बॉस कैन कंप्लीटली बी फ्री इन, खिलाओ हम छोड़ देते हैं। देर आर सम मैटर्स वेयर वी नीड टू बी अथॉरिटेटिव, देर आर सम मैटर्स वेयर वी नीड टू बी डेमोक्रेटिक। लाइक टॉप लेवल से मिडिल में आते आपका अथॉरिटेटिव रहता है, जहां मिडिल लेवल होता है वो पार्टिसिपेटिव रखता है, जहां आपका डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, एंड जहां आपके मेन नहीं है, जो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम उसके बारे में बोलते हैं तो वहां आ जाता है आपका फ्री। तो दीज आर द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो पहला हमने पढ़ा था सुपरविजन, सेकंड हमने पढ़ा था मोटिवेशन, थर्ड हमने पढ़ा लीडरशिप। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपने आप में
बहुत बड़ा आपका जो है मतलब की पार्ट। कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज टू वे। मैं जो आपको बोल रही हूँ वो आपको समझ आना चाहिए, एंड यू शुड गिव मी द फीडबैक इन द सेम मैनर व्हाट आई वांट। अभी तो आपके एग्जाम्स होते हैं और टीचर क्या कहते हैं, मैंने आपको ये लिखने के लिए बोला था, मैंने आपको ऐसे लिखने के लिए बोला था। शी आस्क्स यू, दिस इज वेयर कम्युनिकेशन इज देयर। कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना, उसमें जो चैनल ऑफ मतलब की टॉक है वो हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल जो रिटर्न होता मोस्ट ऑफ द टाइम, ईमेल्स आपके, जहां आपका बॉस या आपका मतलब की जो सुपरवाइजर है वो आपको कमांड दे रहा है, इट फॉलोज अ स्केलर चेन एंड इट इज ओनली अबाउट द ऑफिशियल वर्क। इनफॉर्मल, friends, general talk, no channels, and that is why informal channel is also called as grapevine. Grapevine का मतलब होता है rumors। वो देख, वो लड़की देख, वो देख उसके साथ खड़ी है, जरूर उसका कुछ चक्कर चल। And then after 10 minutes, 10 people will know the same. Informal. Sometimes in the office, a person might be talking to some boss। ये सब कुछ आपकी बुक में भी था और ये पेपर में एक पिक्चर बन के आया था, ये मेरे अपने नहीं है। दिस केम एज अ पिक्चर। एक और आपकी बुक में भी है, आई थिंक अभी है या नहीं, पहले तो था, ये फोटो भी थी। एक मतलब कि एक लेडी है, उसका प्रमोशन हो गया है। देन द नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो पता क्या होता है, ओ शी वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, तभी उसका प्रमोशन हो गया। तो र्यूमर स्टार्ट स्प्रेडिंग। कम्युनिकेशन, अब ये जो बैरियर्स है ना, ये बिल्कुल अलग है, and these are going to eat your head। class 12, I tell you that these barriers are going to just eat your head, ऐसे करके खाएंगी आपको। So please be very very alert while you are learning this। Means when we are communicating, there are so many things। language barrier, मतलब if I have to say something, आप इससे पूछ रहे हो मैम what has happened to you, मैं आपको कह रही हूँ आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। आपने कितना सुना होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। ओ माय गॉड मैम को लंग डिजीज हो गया है, एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल मुझे कोल्ड हुआ है। कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। सोचो अगर आपको एक डॉक्टर आकर ऐसे बोलता है कि आपको कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, व्हाट यू विल अंडरस्टैंड। एंड इफ ही सेज आपको कोल्ड है, तो आप पता क्या बोलोगे, बताओ कोल्ड के लिए मैं डॉक्टर के पास आया था। अच्छे लैंग्वेज, टेक्निकल जार्गन, मतलब कि टेक्निकली हम लोगों ने ऐसे वर्ड यूज किए, ये इसी को बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। दीज आर ऑल गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपने कोई ऐसा वर्ड बोला है जो लेबर्स को समझ नहीं आ रहा, वर्कर्स को समझ नहीं आ रहा, एम्प्लॉयज को समझ नहीं आ रहा। इन सम कंपनीज देयर आर ट्रांसलेटर्स। हम, आई थिंक मेरे साथ में अतुल इज देयर एंड अंश इज देयर। वो जो हिंदी मूवीज, जो तेलुगु तमिल और मलयालम मूवीज को जब वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो समटाइम्स आई फील कि आई शुड जस्ट टेक अप माय टीवी एंड थ्रो इट आउट। कंप्लीट रॉन्ग ट्रांसलेशंस आते हैं। नाउ द पर्सन हैज सेड समथिंग इन स्पेनिश एंड हमने उसको कुछ और कर दिया। समटाइम्स दैट माइट बी अ रॉन्ग assumption। बॉडी लैंग्वेज, तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ
कम्युनिकेशन बैरियर, और ये पेपर में आपके आते हैं, आइडेंटिफाई द काइंड और उसका टाइप, मतलब सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, when you are talking something to some person in some manner। अब अगर आपको एक हम जब मतलब कि ड्राइवर या कंडक्टर या किसी बात करते थे, हम कहते हैं भाई वो जरा अपना पाना लेकर आना, बट अगर हम उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में बताएं कि प्लीज गो एंड ब्रिंग दिस, उसको क्या समझ आएगा? देन द क्लाइमेट ऑफ द organization, maybe the person is not well, the person has some personal problems, the person doesn't have any trust on his subordinate or on vice versa। और उस वक्त में क्या होता है कि हम जो चीज दूसरा बोलना चाहता है ना वो सुनते ही नहीं है, सुनने से पहले ही हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज वेयर बैरियर्स कम, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट देयर इन एग्जैक्टली इन योर सिलेबस, बट आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। दैट व्हेन वी आर लर्निंग द बैरियर्स वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इन बैरियर्स को हम कैसे पूरा करें, क्योंकि एक अच्छा डायरेक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन द सुपरवाइजर्स, व्हेन द मतलब कि व्हेन देयर इज सुपरविजन, लीडरशिप, communication and motivation as well। And अगर communication में there are any kinds of barrier, whether it is semantic barrier or an organizational barrier or a psychological barrier or personal barrier, उससे काम का जो काम जिस तरीके से होना है वो नहीं होगा। Therefore, these barriers must be overcome. So, in a nutshell, class 12, this is what we call as direction, directing, यानी कि doing the things in the efficient and effective manner, but to do we need certain elements, यानी कि डायरेक्शन का मतलब होता है जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का मतलब है जो हमारा मतलब कि सब सुपरवाइजर है वो एक अच्छा सुपरवाइज भी कर रहा है, वो लीडरशिप भी अच्छे से निभा रहा है, the company's policies are also giving support as financial and non-financial incentives, and there is proper communication flowing, then जो काम हमारा होना है at whatever level, top to middle, middle to supervisor, or supervisor to the workers, it would be done in the efficient manner। So that's what we call as a chapter directing।